Hello everyone, with a pleasant morning. I welcome you on behalf of Shivaji Group of Institutions with the online classes. Students, in a previous lecture class, we have completed the chapter. The topic that was figures of speech. The topic was really connected to your poetry portion. That's why we have not started our poetry. So, in English literature, your first poem is a photograph. A photograph that is composed by Shirley Dawson. So, first we will come to know about the poetess. Actually, Shirley Dawson belongs to the modern age. She was a modern age poetess, and she was always busy in writing British poetry. The age of experimentation in form and technique, she was known for it. Her poetry is known for the brief, witty touches and a unique combination of humor and pathos. So, if we talk about Shirley Dawson, so basically she was known for her wit and presence of mind, and her poetry is a combination of humor and pathos. Sometimes we get sometimes we get types of humor, and sometimes we get a blend of humor and pathos in her poetry. Okay, fine. So student, and she is also known for her wit because she has a good presence of mind in herself. Okay, she lives in Somerset and present she came under the influence of Celtic Christianity. During the period, she was working on her book dealing with the folklore of Britain and Ireland. She was busy writing such type of the books, and she seems to have imbibed in her life very strongly the impact of religious person and sense. So we can say that she was a sacred person. She was a religious one because she has imbibed such type of the impact into her life because she has written such type of the books, and her notable works are Celtic Alternative that was written 1987, and Celtic Year, it was written in 1993. So student, we came to know something about the poetess, a superficial knowledge about the poetess. Then after we will move to a poem. What is poem? What is about it? So today we will study it, what it deals about it. So as you know that different types of the life we have, and there are many phases of our life, and that phases of life reminds us something special. Sometimes we have good memories, and sometimes we have bad memories. So it happens with everyone, not only with us. It happens each and everyone. So if you have a life, sometimes you have pleasant times, sometimes you have unpleasant time, your adverse circumstances are going on, sometimes your prosperous time is going on. Fine. So the time that is very memorable for you, the time that really give you charm and happiness and pleasure to your life. So you just want to capture that thing because that time is really memorable for you. So you just want to capture that thing. You just want to grasp that thing into your mind, and you wanted to make that time as a memorable, you want to keep that thing as a good memory of my life. So what is the thing by which you can keep that thing as a memory? Only by photograph. Only by photograph. Whenever you take a photograph of something, and when you see that photograph, so that memory will remind you, that it was exactly happened at that time. That memory will remind you. Okay. So in this poem, a photograph, the poet deals with the commonplace theme of the impermanence of the life. It's known, knows it, that life is not permanent. It's temporary. Life is immortal. Human beings are mortal. The one who has taken birth in life is sure to die. Sure to die. Okay.
it's inevitable that we have to die. Death keeps no calendar. If we have taken birth in this world, so sure we have to die. No one can save you from the clutches of death. You know the death. You know the date of your birth. You know the date of your birth, but you don't know the date of your death, because death keeps no calendar. You don't know when will you die. You don't know how many times left in your life, how many years are left in your life. You celebrate your birthday every year, and you people really get very excited when your birthday is about to come. You are very excited. You just decorate your home. You arrange a grand party, and you invite your friends and relatives to your party. But you don't know that 1 year or some special time has been parted that from that sufficient time, from that counted time, the counted time that has been given to you by the omniscient, omnipresent, and omnipotent. Who is omniscient, omnipotent, omnipresent? God. God has given you counted time, and that counted time has been separated from that. Okay, so the thing is that life is not permanent; it's temporary. Fine. This is the theme. Death and decay are an integral part of the human life. With time, man loses his youth and strength. It's happened with everyone. Whenever you are at the age of youth, you have lots of energy, you have lot of enthusiasm, you have lot of spirit and vigor in your life. But as soon as you get you become grow and grow, you become older and older, you also loses your energy, you loses also your enthusiasm and spirit. That is the thing happens with everyone. It's not a new thing for you. Everyone knows it. It happens with everyone. Fine. Then one day he is no more. So it happens that one day a day will come, that is our death day. What is left behind are sweet and sour memories. But after our death, what is left here? Only our memories, and that memories are bitter or sweet. Sometimes we'll have sweet memories, and sometimes we'll have bitter memories, which are often evoked by some photographs. So when some person is died, so how can we keep the memory of that person? Only by photograph. So whenever we see the photograph of that person, we can just remind the memory of that person. Fine. So only by the photograph we can keep that thing. We can just treasure that. We can just treasure that thing. Looking at the photograph of her mother, the poet recalls how her mother would laugh while looking at the photograph, and would recall how they were dressed for the beach. Looking at that, here the poet is saying that her mother is looking at the photograph. Her mother, which means that it also mother, she was looking at the photograph, and she was just trying to memorize the thing, that how would she dressed, how she used to be herself when she was at the age of childhood. When she was at the age of childhood. And while looking at the photograph, and would recall her, they were dressed for the beach. Whenever they used to go for the beach, they dressed themselves very nicely. They dressed themselves very properly. Where the photograph was taken, and the photograph that was clicked by the uncle. Fine. So the thing is that the photograph is really giving a specific thing, a specific symbol of that time. It really it's really a medium of recalling those recognizing those memories, the moment that has been gone. So how can we get that moment? Only by photograph. So where the photograph was, the mother is now no more. Mother is now no more. So let also be saying here that she is no more. Nothing remains of her but memories. So I have only her memory. She is no more,
and there's only a silence and a void to reflect upon by the next generation. So it happens generation to generation. It's not only with the poet's mother, it happens with everyone. The realities of change and death have to be accepted. So student, we have to accept it that everything is change. Change is the law of nature. If you are young today, so sometime after some time you will grow old, and sometime you will be mature, and sometime you will be old, and sometime after some time you will be died. It happens everyone. We have to follow the steps of the life. We have to pass the phases of the life. These are the phases of the life. No one can save oneself. No one can save oneself. Yeah, either you can say no one can save himself or herself from these clutches of time, from these phases of the life. No one can save. Fine. So this is the thing. This is the gist. This is the theme of this poem. This is the theme of this poem. So this poem is very easy, and it's classified into 3 phases. The first phase is written over here. In the first phase, the childhood periods has been explicited. The photograph of the poet's mother. In the first stanza, the photograph of the mother, and they went to the beach with her cousin, and cousin names were, I'm telling you, enjoying her sea holidays. And they 3 were enjoying, what were they enjoying at that time? The 3 were enjoying the sea holiday at that time. And the cousin, what were the name of the cousin? The name of the cousin were Betty and Jolly. Betty and Jolly. Poet's mother age. So what was the age of poet's mother? The poet's mother was around 12 years, and they all were barefooted, and uncles clicked the picture at that time, and the sea has changed. Now the poet is saying over here, the sea has changed at that time. See, I can see that there is a little bit of changement in sea, but mother face has been totally changed. Mother's face has been totally changed. So this is the first phase, and through all this poem, 3 phases are there. This is the first phase. So let's start the first stanza. The first stanza of the text is, the cardboard show me how it was. Cardboard is means cardboard here. Cardboard address the photograph. Cardboard address the photograph. So the cardboard shows me how it was. Here the cardboard means a photograph shows me, it explicits me, it explains me, it narrates me, it describes me that how it was, how it was the time, how it was the period when the 2 girl cousins went paddling. Paddling means walking in shallow water level. That is called in chap chapate way. So 2 cousins were there. What were the name of 2 cousins? Betty and Jolly. They were with my mother, and they 3 were enjoying at that time. They 3 were enjoying at that time into the sea. So that picture shows what was the time of that time. What was the pleasant moment of that time? It was showing only by that picture. Each one holding one of my mother's hand. Each one. They both were catching the hand of my mother. Each one, Betty and Dolly, they both were having it means catching tightly the mother's hand. And she, the big girl, some 12 years old. So almost my mother was 12 years old, and 3 stood still to smile through their hair. So they were just arranging their hair. They were just arranging their hair, and they were smiling through their hairs. अपने बालों के पीछे से वो मुस्कुरा रही थी. But that was a different appearance of that time. That was a different posture of that time, and she was giving that thing because she wanted to give a different type of the picture. She wanted to give a different type of the click at that time. And she, the big girls, there stood still to smile through their at the uncle with camera. So my uncle was there, and she was clicking picture. He was clicking picture. A sweet face, my mother's. My mother's was really having a very sweet and pretty face. That was before I was born. So I was not taken birth at that time. It was a time when I was not taken birth.
my mother was very attractive. She was very gorgeous. She was very pretty and lovely, and the sea which appears to have changeless. So the poetess is saying over here, poetess is explaining over here that I can see that there is some changement in the sea. There is some changement in the sea. Was there terribly transient feet? Terribly means horrible, and transient, that is not permanent. Transient, not permanent. You can say mortal. So that the water of the sea is really washed off. The water of the sea is really washed. It seems to have little change that time, and that time washed off their footprints. What of their footprints? It means to say, it looks that the transient time really washing off their feet. It means to say उनके feet को सी का जो water था वो धो रहा था. It means they all three were mortals. They will die. But the moment the pleasant time that was clicking with the camera, so that will be memorable, that will be treasured for them, and that will never lost, because you know people that lost time never come back again. Fine. So students, this is the first stanza. I hope so that you have got it very well. We will continue the next stanza in our next video. It's very really pathetic poem. It's really very heart-touching poem. I hope so that you are getting it very well. If you don't get it, please ask me in our next video lecture class. So that is enough for you today. Thank you, and I have a nice day toward you all. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 11 की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर का नाम है प्रतिशत त्रुटि। और ये चैप्टर हम लोगों ने थ्योरेटिकल ख़त्म कर लिया है, यानी जितनी भी परिभाषाएं हैं, डेरिवेशन से, इन सब के उद्देश्य से हमने इसे ख़त्म कर लिया है। पर अभी आंकिक प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल्स का जो फंडा है वो सब बाकी है। तो न्यूमेरिकलों में हमने अभी जैसे लास्ट डे एक छोटी सी बात समझी थी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था सार्थक अंक, है ना। सार्थक अंक मतलब किसी उत्तर को निकटतम मान में, यानी सही दशमलव के निकटतम मान में प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने उपयोग किया सार्थक अंक का। उसमें हम लोगों ने 1-2 सार्थक अंक के सवालों को भी लगाया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीधे से प्रतिशत त्रुटि तक के सवाल। प्रतिशत त्रुटि तक के सवाल, इसमें हम लोग कई चीज़ें प्राप्त करेंगे। अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल पढ़ रखा था जो हमने माप के लिए साधारण सा बताया था। उसमें हम लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की थी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की थी, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात की थी और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की थी। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने ज्ञात करके रखी हुई हैं। तो आज आपसे न्यूमेरिकल हम लोग सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो न्यूमेरिकल मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं अगले वीडियोस में आपको उन न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और करने के तरीके बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आज हमने बताया कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि के न्यूमेरिकलों को, आंकिक प्रश्नों को। तो पहला जो न्यूमेरिकल हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि एक गोला दे रहा है और उस गोले की त्रिज्या जब मापी जाती है, त्रिज्या मापी जाती है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है? 2% की त्रुटि हो जाती है। ठीक है, 2% की त्रुटि त्रिज्या के मापने में हो रही है गोले की। अब कहा जा रहा है अगर फिर हम उसी का आयतन ज्ञात करेंगे, त्रिज्या को अप्लाई करके, ठीक है, रेडियस को अप्लाई करके त्रिज्या का मान रख के हम उसी गोले का जब आयतन प्राप्त करेंगे तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होने वाली है। ठीक, बात समझ में आ गई। यानी आयतन आपको ज्ञात करना है त्रिज्या से। अभी आपको जो दिया गया है वो r नहीं है, वो r यानी त्रिज्या नहीं है, बल्कि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि जो होती है वो हमने बताया था सापेक्ष मान में हम जब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है
क्या दिया है आपको? दिया गया है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का जो मान है वो कितना है? 2% है। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे गोले के आयतन के सूत्र से, गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखो, ये सारी चीजें टर्म्स होती हैं न्यूमेरिकल को लगाने में। न्यूमेरिकल आपको सारे आएंगे, लेकिन ऐसी चीजें अगर आपको करना आ जाएगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं? सापेक्ष त्रुटि के रूप में। और सापेक्ष त्रुटि के रूप में अगर आयतन को लिखेंगे तो ये लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V। जबकि जितनी कांस्टेंट चीजें सारी चीजें हट जाती हैं, क्योंकि अब हमें केवल बात त्रिज्या से करनी है। तो 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट ये हट जाएंगे, और जब हटेंगे तो केवल क्या बचेगा? R। इस R को अगर हम केवल लिखते तो लिखते डेल्टा R अपॉन R, लेकिन R की पावर 3 है तो इसको हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। और अगर प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल क्या आ जाएगा? 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। आ गया? आप देखो, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जिसे हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, प्रश्नानुसार। ठीक है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 का मान आपको ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रहा है 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। अब आपको ये चीज़ें तो दी गई है, देखो दिया गया है ना, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की वैल्यू कितनी है? 2%। तो अब आप लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 और इंटू में अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रतिशत है? 2%। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6%। दैट्स योर आंसर। आप लिख सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं है? यानी अगर त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है तो जब हम आयतन का मापन करेंगे तो कितने प्रतिशत की हो गई? 6%। ठीक है, एक बार हम इसमें अपनी तरफ से ऐड करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि की गणना करो, यानी क्वेश्चन अलग हो गया। क्वेश्चन हो जाएगा इसी के, यानी जो क्वेश्चन है पूरा वो पूरा चलेगा, जहां पर आयतन लिखा है यहाँ पर हो जाएगा इसी के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। ठीक है, तो भाई क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल की प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 का मान क्या होगा? ठीक है, अब चूंकि आपको फिर से वही बात करनी है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में आपको क्या करना है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखोगे आप सोल्यूशन, यहाँ पर लिखोगे आप दिया है, क्या दिया है? केवल आपको डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ठीक है, इक्वल कितना दिया गया है? 2%। ठीक है, ये मान आपको दिया गया है। अब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है क्षेत्रफल के लिए। तो क्षेत्रफल के लिए आपको पता है A बराबर होता है गोले के लिए 4 पाई R स्क्वायर। सापेक्ष रूप में फिर से आप लिखोगे इसको, तो सापेक्ष रूप में आप लिखोगे डेल्टा A अपॉन A इक्वल 2 इंटू डेल्टा R अपॉन R। फिर लिखोगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में, तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इक्वल 2 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। मिला? बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? आप फिर से देखोगे डेल्टा R अपॉन R 100 को हमें दे ही रहा है,
तो क्या मिलेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू इंटू 2%, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 4। दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, देखो जितनी पावर आएगी उतने का आप सीधे मल्टीप्लाई करना है। गोले में भाई कितनी पावर आ रही थी आयतन में, पहले 3 पावर आ रही थी, तो आर में कितने मल्टीप्लाई किया, 2 का, आर के परसेंटेज में कितने मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6%। इसमें आर में कितनी पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है, तो आर के परसेंटेज में कितने मल्टीप्लाई किया, 2 का, और आपको आंसर मिल गया, है ना। तो ये होती है कुछ ट्रिक्स, जब आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इनका आंसर सीधे से बता सकते हो, लेकिन अभी ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो इनका आंसर हमें बताने में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप आराम से कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद फिर हम भी करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि सरल लोलक जानते हो, पेंडुलम, है ना, यानी हमने क्या किया, एक धागे से एक बॉब यानी पत्थर के टुकड़े को बांध लिया और बांध को उसको एक ओर ले जाकर जब हमने छोड़ा तो वो आवर्ती गति करता है। तो इस आवर्ती गति में जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो उसके एक चक्कर पूरा करने में जो भी समय लगेगा उसे कहेंगे आवर्तकाल। ठीक है, तो ध्यान समझना है, उस आवर्तकाल का एक सूत्र भी होता है, भी आपको बताऊंगा। तो आपसे बता रहा है कि जो भी हम उस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं वो है डोरी, और डोरी की लंबाई के मापन में जब हम करते हैं तो हमें कितने % की एरर मिलती है, 2% की त्रुटि मिलती है, जबकि उस 2% की त्रुटि के साथ में हमें उसके आवर्तकाल के मापन में कितने % की त्रुटि मिल जाती है, 3%। ठीक है, लेकिन इस प्रयोग से हम क्या करते हैं, स्मॉल जी का मान ज्ञात करते हैं, यानी स्मॉल जी के मान में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस जगह पर, उसको प्राप्त करते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर हमें पता चल जाए कि लंबाई के मापन में 2% की एरर है और उसके आवर्तकाल के मापन में 3% की एरर है, तो उसकी स्मॉल जी के मान में कुल कितने % की त्रुटि होगी ये ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लिखते हैं इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, देखो लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि है, लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम लिखेंगे इक्वल कितनी है, 2%, और इसी से बनने वाले आवर्तकाल के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो होगी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इक्वल कितनी आ गई, 3%। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 के मान में क्या होगा। ठीक, ये चीजें आपको दी गई हैं, हिडन है, आपको पता है कि इनको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आते हैं, आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। सबसे पहले तो भाई आवर्तकाल की बात कर रहा है तो हम सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र से क्या होता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। सिंपल सी बात बता दो, अंडर रूट हटाने का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख दो, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में क्या, एल अपॉन जी आ गई। अब लिखेंगे सापेक्ष रूप में लिखने पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सापेक्ष रूप में लिखने पर। तो इसको आप अगर सापेक्ष रूप में लिखोगे तो बताया था अगर केवल टी होगा तो डेल्टा टी अपॉन टी लिखते हैं, लेकिन टी स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, वैसे आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखो जी का मान ज्ञात करना है, तो आप पहले तो जी इधर ले आओ, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब आप इसको लिखो सापेक्ष रूप में। ठीक है, तो अब आप जब इसको सापेक्ष रूप में लिखोगे तो आपको
क्या मिलने वाला है, फटाफट देखो जल्दी से, ठीक है। यानी g इज इक्वल टू 4π² इंटू एल अपॉन में क्या आ जाएगा t²। अब लिखोगे आप सापेक्ष रूप में लिखने पर, तो यही चीज अगर आप सापेक्ष रूप में लिखने जा रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, तो ये होगा डेल्टा g अपॉन g इक्वल 4π को हट जाएगा, 4π² क्या हो गया, हट गया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट हटा देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब फिर आते हैं, सबसे पहले l का लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा l अपॉन l प्लस में, याद रखो अपॉन में है तब भी वो प्लस में आएगा, 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t, ठीक है, समझ में आया। चलो और देखते हैं अब क्या है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो भाई प्रतिशत त्रुटि के रूप में, प्रतिशत त्रुटि के रूप में क्या आना है भैया, देखो जरा ध्यान से, डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इक्वल डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t इंटू 100, मिल गया। अब क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है वो वैल्यू रखो, क्योंकि ये तो आपको ज्ञात करना है, तो ये ऐसे ही आएगा डेल्टा g अपॉन g इंटू 100, जबकि डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 2%, आपने लिख दी 2%, प्लस डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 3%, तो 2 इंटू में क्या आ गया, 3%, यानी डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 की जो वैल्यू हो गई 2% प्लस 6%, यानी डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8%। दैट्स योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। करने के तरीके तो बहुत शॉर्ट में हैं, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। जब आप इन न्यूमेरिकल्स को इन्हें स्टेप बाय स्टेप लगाना सीख जाएंगे, इन्हें ऐसे करना सीख लेंगे, तब आप इनको शॉर्टकट में भी लगाएंगे, लेकिन वो होगा तब जब आप इन्हें प्रैक्टिस में ला के रखोगे। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रैक्टिस में रखना है, प्रैक्टिस में रख कर इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बहुत अच्छे से इसको भी प्रैक्टिस करो। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ओवर। Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Badi. Today I am going to explain next part of the chapter, that is modern chemistry. आधुनिक परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, आधुनिक परमाणु संरचना। इस आधुनिक परमाणु संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति से तात्पर्य क्या है? मैटर। सबसे पहले आते हैं मैटर पर। पदार्थ किस प्रकार का होना चाहिए? पदार्थ किसी प्रकार का भी हो सकता है। एक होता है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म बोलते हैं, और एक होता है मैक्रो, जिसको हम लोग बृहद कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद। सूक्ष्म हो अथवा बृहद हो पदार्थ, इन पदार्थ में दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है बेटा पार्टिकल, कण का गुण, और दूसरा होता है वेव, मतलब तरंग का गुण। पदार्थ में दो प्रकार की प्रकृति का पाया जाना, ये पदार्थ की द्वैती प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम पदार्थ ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के भी दो गुण होते हैं, पार्टिकल नेचर में भी होता है और वेव नेचर में भी रहता है। अब वो कौन सी घटनाएं हैं जहाँ पर ये कण रूप में पाया जाता है और कहाँ भी तरंग रूप में पाया जाता है? तो एक घटना भी आपने पढ़ी थी
डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों की खोज में जब इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो कण रूप में पाया गया, और एक घटना होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये घटना आगे चलकर फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी, आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में इसको तरंग प्रकृति में देखा जाता है। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित समय में या तो वो कण रूप में होगा या फिर वो तरंग रूप में होगा, एक समय में एक ही रूप में पाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, इलेक्ट्रॉन के दो रूप हैं, कभी कण रूप में तो कभी तरंग रूप में। इस प्रकार किसी भी पदार्थ का दो रूपों में पाया जाना उसकी द्वैती प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब बात यह आती है कि मैंने यहाँ पर सूक्ष्म कण का उदाहरण लिया, बृहद का कोई नहीं लिया। सिद्धांत दोनों के लिए बनाया गया था, माइक्रो और मैक्रो के लिए, लेकिन इसकी जो प्रामाणिकता थी वो सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू हुई, बृहद पे नहीं हुई है। इसका हम आपको उदाहरण देंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। अगला क्या है, इसी में आता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप डी ब्रॉगली संबंध। इसी चीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैटर का दो रूप, एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव। तो डी ब्रॉगली सर ने बताया कि जब पदार्थ कण रूप में है तो उसके साथ संयुक्त ऊर्जा इक्वल टू mc² से दी जाएगी, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। फिर जब वो तरंग रूप में है तो उसकी ऊर्जा इक्वल टू hν के रूप में दी जाएगी। ये प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, mc² = hν। अब आगे न्यू की वैल्यू होती है, न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, इसका मान होता है c/λ। आवृत्ति बराबर होता है c/λ। c प्रकाश की चाल, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। सी से सी कर गया, क्या आ गया, लैम्डा = h/m × c। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको हम पार्टिकल वेलोसिटी जो कि v होती है उससे रिप्लेस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्यों किया गया, लाइट मतलब वेव, पार्टिकल मतलब कण।
तो इनको दोनों को रिप्लेस कर दिया, दोनों एक ही चीज़ मान लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था? c, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या था? v। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। ये जो समीकरण बना इसको जो है हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। m इंटू वी को हम लोग एक नाम देते हैं संवेग, इसका नोटेशन p होता है। तो ये भी आपका डी ब्रोगली समीकरण है। h क्या है? h है प्लांक नियतांक। इस नियतांक को हटाएंगे तो एक रिलेशन और आ जाएगा, लैम्डा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। लैम्डा किस रूप से आ रहा है? तरंग रूप से। तरंग दैर्घ्य का तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य होगी। मोमेंटम जब वो पार्टिकल नेचर में होगा, तो इन दोनों का एक रिलेशन है। इसको हम बोलते हैं, ये दोनों ही जो है डी ब्रोगली समीकरण है। इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मेघ। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ क्या है? परमाणु में धन आवेशित नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। वो तीव्र गति क्या है? 1 सेकेंड में 1 मिलियन तक रिवॉल्यूशन होते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, और इन 1 सेकेंड मिलियन ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तो वो नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाएगा। इस फैले हुए नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेसिकली है क्या? नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन मेघ कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन मेघ के नाम से रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी में कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे डिवीज़न होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी कंप्यूटर होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर हम लोग बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो हम लोग जनरली कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर इनका यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस हमारा करता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको आउटपुट के रूप में दिखाए स्क्रीन पर या प्रिंट कराए। तो हम लोग बात करते हैं आज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स की। तो ये होते हैं ALU, CU और MU। ALU क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। अगर हमें
यहाँ पर सर्किट्स होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, और अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। अगर हमें दो संख्याओं को कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो डिफरेंट बिट्स पे वर्क करते हैं। 16 बिट कंपैरेटर, 32 बिट कंपैरेटर, 64 बिट कंपैरेटर। तो ये सब क्या है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ALU। तो ये ALU के कंपोनेंट है। और आपको ये भी पता है कि CU भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होती है। तो यहाँ मेमोरी यूनिट भी कई प्रकार की होती है। मैग्नेटिक मेमोरी होती है, आपकी रैम होती है, रोम होती है। तो रैम के पार्ट होते हैं SRAM, DRAM। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे और भी स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं। तो छोटे छोटे सर्किट्स का निर्माण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कंप्यूटर्स में? गेट्स का। तो गेट्स क्या करते हैं? गेट्स एक या एक से अधिक मिलकर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और सर्किट्स का निर्माण करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो बेसिक रूप से गेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एंड गेट, दूसरा होता है हमारा और गेट, और तीसरा होता है हमारा नॉट गेट। तो ये 3 गेट हैं जो बेसिक गेट्स कहलाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड गेट क्या होता है। एंड गेट को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले एंड गेट लिखेंगे। एंड गेट क्या करता है? या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है, या दो से अधिक इनपुट ग्रहण करता है और एक आउटपुट प्रदान करता है, अगर हम लोग इसका सिंबल देखें एंड गेट का क्या सिंबल होता है? तो हम लोग डालेंगे हेडिंग सिंबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सिंबल क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो दो से अधिक इनपुट लेता है और क्या देता है हमें? और हमें एक आउटपुट देता है। हम लोग यहाँ इनपुट के रूप में A और B को लेंगे और आउटपुट में हम दिखाएंगे F = A.B। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एंड गेट है, उसका सिंबल है। अब हमको क्या जानना है इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है बाइनरी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 पार्ट होते हैं ट्रुथ टेबल के, इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। अगर इनपुट में हम लोग दे रहे हैं 2 वैल्यू A और B और आउटपुट में निकलेगा F = A.B। तो यहाँ 2 0 2 1, यहाँ 0 1 0 1 और यहाँ आउटपुट निकलेगा 0 0 0 1। अब यहाँ पे क्या है? 4 केसेस होंगे इसके। केस 1 में क्या होगा? When A = 0, B = 0, then F = 0। दिस इज फर्स्ट केस। ये पहला केस है हमारा, केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या होगा? जब A जो है 0 हो और B 1 हो, तब भी F क्या होगा? 0 हो। केस 3 जब A 1 है और B 0 है, तब भी F 0 होगा। और केस 4 जब A जो है वो हमारा 1 है और B भी हमारा 1 है, तो F क्या होगा? 1। सिर्फ लास्ट वाले केस में हमको 1 मिलेगा, बाकी सब केस में इनपुट हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा।
तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंड गेट। अब हम लोग बात करेंगे और गेट की और नॉट गेट की। तो सबसे पहले हम लोग देखें और गेट क्या होता है। और गेट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि और गेट क्या होता है, और गेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए और गेट क्या होता है, और गेट के बारे में देखिए हम लोग। और गेट क्या करता है, या दो या दो से अधिक इनपुट लेता है, या दो से अधिक इनपुट लेता है तथा केवल एक आउटपुट प्रदान करता है, एक आउटपुट प्रदान करता है। तथा केवल एक आउटपुट प्रदान करता है। अब हम लोग सिंबल देखें और गेट का। सिंबल ऑफ और गेट। और गेट का सिंबल देखें। सिंबल क्या होता है और गेट का, क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक इनपुट ग्रहण कर रहा है और क्या कर रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। इनपुट हमारा क्या है, ए है, बी, और आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, f इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा क्या निकला, आउटपुट। तो ये क्या है हमारा सिंबल ऑफ और गेट। अब हम लोग बात करेंगे ट्रुथ टेबल की। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए। ट्रुथ टेबल जैसे हमने पिछली बनाई थी, दो भाग होंगे इसके। पहला होगा इनपुट और दूसरा होगा हमारा आउटपुट। इनपुट में हम लोग क्या देंगे, इनपुट में हम लोग लिखेंगे ए, बी और एफ। 2 0 2 1 0 1 0 1, और यहाँ पे जो एफ होगा वो होगा हमारा ए प्लस बी। तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा 0 1 1 1। अब यहाँ पे हम लोग केस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केसेस होते हैं। केस 1, जब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, देन f इक्वल टू 0। जब a 0 है, b 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। हमारा केस 2 क्या है, केस 2 कहता है हमारा जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, देन f इक्वल टू 1। तब क्या होगा, f 1 होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। केस 3 क्या कहता है हमारा, जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, देन f इक्वल टू 1। इस केस में भी हमारा f 1 होगा। और लास्ट केस क्या है हमारा, केस 4, जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, देन f इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे 3 केसेस में जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, और 2 केसेस में आउटपुट हमारा, एक केस में हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट। अब हम लोग तीसरा गेट पढ़ेंगे जो हमारा नॉट गेट होता है। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट इन्वर्टर के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल जो है इन्वर्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन्वर्टर का प्रिंसिपल क्या होता है, इन्वर्टर का प्रिंसिपल ये होता है जब आपकी लाइट चली जाती है, यानी जब आपका इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। जब आपका आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1 मतलब लाइट आ जाएगी, तो इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट यह केवल एक ही इनपुट ग्रहण करता है
तथा इनपुट के सापेक्ष एक आउटपुट प्रदान करता है। तो अब इसको देखिए, ये केवल एक ही इनपुट लेता है और इनपुट के सापेक्ष एक आउटपुट प्रदान करता है। इसका सिंबल देखें, नॉट गेट कैसे होता है, ये नॉट गेट है। अगर यहाँ पर ए है तो क्या बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रुथ टेबल देखें, हमको ट्रुथ टेबल देखें इसकी, ये हम इसकी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ये हमारा ए है, ये बी है और ये एफ बराबर क्या है हमारा, इसमें बी नहीं होगा, ए ही होगा, ए और एफ बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें दो ही केस होंगे, तो इन दोनों केस को देख लीजिए। ए जब 0 होगा तो आउट यहाँ 1 होगा, जब ये 1 होगा तो यहाँ 0 होगा, यानी इसमें केवल 2 केसेस होंगे। केस 1, जब a इक्वल टू 0 तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। जब a 0 है तो आउटपुट f क्या होगा हमारा, 1 होगा। और केस 2, जब a इक्वल टू 1 तो a कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, तो आउटपुट 0 होगा। तो इस तरह से ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये इन्वर्टर के सिद्धांत पे काम करता है। जब a इक्वल 0 तो a का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 का कॉम्प्लीमेंट, और 0 का कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है 1। केस 2, जब a इक्वल टू 1 तो a का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। तो ये हमारे बेसिक गेट्स थे, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। अब आगे हम लोग जो है इनके कॉम्बिनेशन गेट्स पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू क्लास।